Hello students, today I will discuss most important questions on the rape of the lock composed by a great neoclassical poet Alexander Pope in 18th century. In which century? In 18th century. Students, definitely it will be very helpful for you for your examination. Yes students, आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है. But before telling you the important questions, let's see the background of this great work. कि वे क्या सिचुएशन थी जब पोएट ने ये एपिक लिखा और किसके बारे में लिखा था. रेप ऑफ द लॉक हैज़ ए सैटारिक वीन विच रिफ्लेक्ट्स अ ट्रू एंड रियल रिफ्लेक्शन ऑफ न्यू क्लासिकल एज. कौन से एज को इसमें रिफ्लेक्ट किया गया है? न्यू क्लासिकल एज को. Neoclassical age. And Alexander Pope depicts about two aristocratic families of London of that time. First was a gentleman, Lord Peter. किसके बारे में लिखा था? A gentleman, Lord Peter. And the second family, Miss Arabella Fermor. इन दोनों के बारे में इस एपिक में लिखा गया है. When Peter cut the lock of Arabella, she became furious, and the relationship of these two families were affected only due to this trivial act. And then John Carroll, who was the family friend of these families, requested Pope to write on this trivial topic. तो जब पीटर ने एरावेला फर्मर के हेयर को कट कर दिया तो एरावेला बहुत फ्यूरियस हो जाती है एंड दोनों फैमिलीज़ के जो रिलेशनशिप होते हैं वो इसकी वजह से अफेक्टेड होते हैं. जॉन कैरल ने एलेक्जेंडर पोप से इस टॉपिक के बारे में लिखने के लिए कहा. जॉन कैरल वॉज फैमिली फ्रेंड. ये फैमिली फ्रेंड थे इन दोनों फैमिलीज़ के, पीटर एंड एरावेला फर्मर के. एंड देन his work was only for two families, but some publisher published it and the work became public. Arabella became furious to see this. Arabella को बहुत गुस्सा आता है जब उसे ये पता चलता है कि उसकी पर्सनल लाइफ अब पब्लिक बन चुकी है. उसकी लाइफ की एक छोटी सी जो इवेंट थी वो अब पब्लिक हो चुकी है. एंड इट्स फर्स्ट वर्जन अपीयर्ड इन 1712. इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो 1712 में आया था एंड इट कंटेन्स ओनली 2 कैंटोज. इसमें सिर्फ 2 कैंटोज थे, ठीक है, जो 1712 में आया था. बट लेटर ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस वर्क एलेक्जेंडर पोप एडेड सम मोर विच कंटेन 5 कैंटोज. और बाद में जो एडिशन आया उसमें 5 कैंटोज थे. The Baron, the pseudonym for Lord Peter and Belinda as Arabella Fermor. इस रेप ऑफ द लॉक वर्क में एपिक में एरावेला फर्मर इस कैरेक्टर का नाम एज बेलाइंडा के रूप में है एंड जो लॉर्ड पीटर है उसका नेम क्या है इसमें? बैरन. सो दिस वॉज द बैकग्राउंड ऑफ द रेप ऑफ द लॉक. लेट्स बिगिन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं. Long questions. First long question is the rape of the lock as a mock epic. कि rape of the lock एक mock epic poem है. This question can be asked like this. ये question इस टाइप से भी पूछा जा सकता है. Rape of the lock as a mock heroic poem. Rape of the lock as a heroic comical poem. और theme of this poem. Appropriateness of the title the rape of the lock. ये क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट होकर आ सकता है एंड कहीं ना कहीं आपका आंसर सेम होगा एंड यू कैन स्टार्ट द आंसर लाइक दिस. जैसे आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं जेसी कनिंघम के क्रिटिकल व्यूज से या किसी भी क्रिटिक के क्रिटिकल व्यूज से स्टार्ट कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे इस आंसर में. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉक एपिक, parody and burlesque in it. Title has also mock heroic effect. Structure of the poem.
influence of classicism, function of supernatural machinery, style and diction of mock heroic poem, moral told by Clarissa to Belinda. तो इन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, इन सबको मेंशन करना है. आप चाहें तो हेडिंग ना डालें, ठीक है, पैसे चेंज करके आप लिखते जाएंगे. एंड इन कंक्लूजन यू कैन राइट डाउन हैजलेट, डॉक्टर जॉनसन, विल्सन नाइट, टिलॉस्टन के क्रिटिकल व्यूज को भी लिख सकते हैं, ठीक है. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज the machinery of the rape of the lock, use of supernatural machinery in this epic. Now the question is, what is machinery? Machinery क्या है? In supernatural machinery, the author or the poets depicts deities, spirits, angels, demons act. So in this epic also, Alexander Pope has described about of spirits, gnomes, sylphs, gods and goddesses, Umbriel, and all of them had participated in Trojan War. इन सब ने ट्रोजन वॉर में पार्टिसिपेट भी किया है. एंड एरियल वॉज गार्डियन ऑफ बेलाइंडा. तो इसमें पोएट ने मशीनरी को यूज किया है. एंड इन दिस आंसर, इस आंसर में आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं. व्हाट इज मशीनरी and Rosicrucian philosophy, characteristics and function of machinery, artistic importance of machinery, comparison of Homer and Milton in use of machinery. और कंक्लूजन में इन क्रिटिक्स के व्यूज भी मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए. कनिंघम, एच हॉल्डन, जी विल्सन, नाइट, विलियम हैजलेट एंड थॉमस कैम्पबेल, ये क्रिटिक्स हैं जिन्होंने सुपरनैचुरल मशीनरी पर अपने व्यूज़ दिए हैं अलेक्जेंडर पोप के इस पोएम के बारे में. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. डिस्कस अलेक्जेंडर पोप एज ए नियो क्लासिकल पोएट, कैरेक्टरिस्टिक एंड टेंडेंसी ऑफ पोप्स पोएट्री. क्वेश्चन नंबर 3 एंड next question, question number 5. Depiction of 18th century is described by the poet in this poem. कि पोएट ने 18th century को कैसे डिस्क्राइब किया है इस पोएम में. रेप ऑफ द लॉक एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ 18th century. 18th century का ये रिफ्लेक्शन है. whatever the things had going on in there in that time, that is described by the poet. Pseudo classical characteristics in Rape of the Lock, Pope as the poet of neoclassical age or Rape of the Lock as a satire. तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 दोनों का आंसर आप कहीं ना कहीं सेम लिखेंगे. ओके. एंड इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं ह्यू वॉकर के व्यूज से. और इसमें किन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे? सुपरफिशियलिटी एंड शैलोनेस ऑफ 18th सेंचुरी, ट्रिफलिंग एक्टिविटीज़, एम्प्टीनेस, मैनर्स, फैशनेबल लेडीज, ट्रीचरी इन रिलेशनशिप, इंट्रीग्यूज इन एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी. ऑल दीज थिंग्स यू विल राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 4. कैरेक्टर स्केच ऑफ बेलाइंडा. बेलाइंडा का कैरेक्टर स्केच लिखना है. और इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं आप? वेरियस फेसेट ऑफ बेलाइंडा, स्पिरिचुअली शैलोनेस, स्पॉइल्ड मच टाइम इन ट्रिवियल टास्क, गेट्स अप एट नून, स्पेंड्स इवनिंग इन प्लेइंग कार्ड्स. because these were the activities which described by the poet in this poem about of Belinda. Shock was the name of Belinda's dog. Belinda के डॉग का क्या नाम है इसमें? शॉक, उसका पेट डॉग है. एंड एरियल, Ariel is the spirit who always
works here as a guardian self. Okay, and Paul the parrot described है इस नेम से Paul, and Thalestris the friend of Belinda, Thalestris, and she is the friend of Belinda. ये Belinda की फ्रेंड है जिसको इसमें मेंशन किया है. ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों में सेम लिखना है. मीन्स 18th सेंचुरी की जो भी सिचुएशन और कंडीशन थी, सुपरफिशियलिटी थी, ट्रिफलिंग एक्टिविटीज़ थी, एम्प्टीनेस था, मीननेस था, ट्रीचरी इन रिलेशनशिप, इंट्रोड्यूस इन दी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी. ठीक है, इन चीज़ों को इसमें मेंशन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स सी short questions. First question is rape of the lock as a social satire. Short question, most of the time if you have prepared long question, तो long question अगर आपके prepare है तो short question उसमें से निकाल सकते हैं. तो as a social satire के रूप में rape of the lock को आपको लिखना है. Okay. Next question, moral in the rape of the lock, moral lesson in the rape of the lock. In this epic, Clarissa is the character who was at the Hampton Court and she tells the moral lesson to Belinda. ये Belinda को morality बताती है. And next question, sexual implication in this poem. What was the tendency about of sexual life in 18th century, that is also described by the poet in this poem. Next question, हाईलाइट द पर्सनैलिटी ऑफ बेलाइंडा इन द रेप ऑफ द लॉक. लॉन्ग में आप प्रिपेयर कर रहे हैं बेलाइंडा का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसका कैरेक्टर स्केच, तो ये आप उसमें से मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन, लॉक अपीयर्स इन मेनी डिफरेंट लाइट्स. यस, ये पूरी स्टोरी अगर किसी सेंट्रल पॉइंट पर रिवॉल्व होती है, दैट इज द लॉक, बिकॉज लॉक इज रेप्ड, दैट इज कट बाय पीटर. तो पूरी स्टोरी लॉक पर है, तो इसके डिफरेंट लाइट्स को, डिफरेंट फेसेट को आपको लिखना है. सुपर नेचुरल मशीनरी इन दिस पोएम, सुपर नेचुरल एजेंसीज और मशीनरी को भी प्रिपेयर कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन आपका वहीं से बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस एपिक एज ए पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी फैशनेबल लाइफ. कंटेम्प्रेरी फैशनेबल लाइफ को मीन्स 18th सेंचुरी में जैसी लाइफ को, लाइफस्टाइल को पोएट ने देखा था अबाउट लेडीज एंड अदर एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज मेंबर, दैट इज मेंशन्ड हियर. ओके, ये लिखना है यहाँ. दिस एपिक एज ए मॉक हेरोइक पोएम. लॉन्ग क्वेश्चन में इसको आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहीं से ले लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ एरियल इन दिस एपिक. यहाँ पर एरियल का क्या रोल है? ये गार्डियन होता है बेलाइंडा का, हु ऑलवेज प्रोटेक्टेड हर. लेकिन जब बेलाइंडा के हार्ट में किसी मैन की फीलिंग आ जाती, किसी मैन की फीलिंग आ जाती है, तो उस टाइम एरियल उसका साथ छोड़कर चला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑम्बर इन दिस पोएम. बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि ऑम्बर क्या है. इन कैंटो 3, Canto 3, Belinda says to Baron to play Omber. Omber is card game which played by 3 people. This game is played by 3 people in this epic. This is a card game. Next question, write a short note on Lord Peter. Lord Peter जो कि इसमें एज ए बैरन डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है. So students, these are very remarkable questions for exams. I hope it is very helpful for all of you. If you need important questions on any literary topic, please write in comment box, and best of luck.